last class we discussed about that what are the types of entrepreneur, कितने type के entrepreneurs होते हैं. We discussed entrepreneurship, basically we discussed what are the various types of that, and we discussed about the what are the qualities required to become an entrepreneur. In today's class we are going to understand that what is the nature of entrepreneurship. क्या नेचर होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप्स विल डू, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक. Good afternoon. Good afternoon. And after completing this, we are going to understand about the Flipkart, the story of Flipkart, how it was started and how now it is one of the leading e-commerce platform, and how they basically complete its journey कैसे इनका complete हुआ, कैसे चल रहा, even अभी भी चल ही रहा है journey. So we'll discuss about that. Okay. So let's start with the class. Nature of entrepreneurship. Nature of entrepreneurship. What is the nature of entrepreneurship? Write about it. So nature of entrepreneurship में, so the first point of the entrepreneurship is a single or joint effort. See, the entrepreneurship is, we can say, it is a kind of business. It is a process to setting up the business, and it is done by either an individual person, यानी एक सिंगल पर्सन के द्वारा भी इसको शुरू किया जा सकता है, और ज्वाइंट एफर्ट के साथ भी इसकी शुरुआत की जा सकती है. सो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज्यादा अगर किसी का एफर्ट लगता है इसको स्टार्ट करने में, तो वो है ह्यूमन का एफर्ट, राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट वो इज सिंगल और ज्वाइंट एफर्ट. सो सिंगल और ज्वाइंट एफर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि या तो कोई पर्सन सिंगल, एक अकेला पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस, सो माय सिंगल एफर्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड, मैं अपना सिंगल एफर्ट लगाऊंगी, आई विल गिव माय पोटेंशियल to start my business, or either I can start my business with a group of people, or we can say it is done by the group of people, like मैं अपने कुछ friends के साथ I can start the business. So entrepreneurship में जो सबसे ज्यादा requirement होता है that is human effort, और सबसे ज्यादा utilization भी human effort का है, ठीक है. For entrepreneurs, enterprises in the small scale, जब हम कोई भी enterprise को small scale में start करते हैं, यानी less capital से when we are starting, then in that situation आप सिंगल एफर्ट से भी आपका बिजनेस रन कर सकता है. जैसे मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा स्मॉल स्टोर ओपन किया. सो व्हेन आई स्टार्टेड अ स्मॉल स्टोर, जस्ट एग्जांपल के लिए कियोस्क ओपन कर दिया या एक जनरल स्टोर इफ आई स्टार्ट, तो दैट इज पॉसिबल बाय अ सिंगल एफर्ट. बट व्हेन वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ लार्ज स्केल, और एक बड़ा बिजनेस जब हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार हमें ज्वाइंट एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ज्वाइंट एफर्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं अकेले बिजनेस शुरू कर रही हूं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि रिस्क भी मैं अकेले ही उठा रही हूं, रिस्क मेरे ऊपर ही है, लायबिलिटी मेरे ऊपर ही है, तो रिस्क मेरे साथ कई हद तक बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है. तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं ग्रुप में स्टार्ट करूंगी, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. सो द फर्स्ट नेचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज that it is started by the single effort or by the group's effort, right? The first point is clear. First point is clear. Yes, ma'am. Now the second point is process. A process. So let me tell you about the Schumpeter first, then I'll elaborate about the process. So Schumpeter is we can say that he is a sociologist, in short, that he told us about the innovation, how innovation is very much required in entrepreneurship. तो यहाँ पर Schumpeter ने process को क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा. तो Schumpeter is the first man who described the entrepreneurship as a process. He is the first person who described that entrepreneurship is not a business, but it is a whole process to setting up the business. The entrepreneurship का जो टास्क होता है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप पूरा बिजनेस को सेटल करने का जो टास्क होता है, that is completed by the series of steps. It is not a one day game.
that we'll start the business today, we'll think that we have to start the business within 1 hour हमने business शुरू कर दिया. No, this is not possible. It is a whole process. Before starting the business, we have to plan. We have to plan about what? First, that what kind of product we need to sell to the consumer, what services we are going to provide to the consumer. Second thing, we are going to determine that what financial capability we have, what stocks we have, पैसे कितने मेरे पास हैं, बैंक में कितना बैलेंस है, कितना पैसा लग सकता है, एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे कि कितना पैसा लगेगा एक बिजनेस को शुरू करने में, कहां पर बिजनेस शुरू करना है, कौन से एरिया में बिजनेस शुरू करना है, ऑनलाइन स्टार्ट करना है, ऑफलाइन स्टार्ट करना है, मार्केटिंग कैसे करेंगे, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं. तो वी हैव टू एनालाइज मल्टीपल थिंग्स, एंड for understanding each and every aspect for starting a business, we are going through various steps. तो ये एक प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन डे गेम. ठीक है, एक दिन का काम नहीं है, इसमें आपको मल्टीपल टास्क करना पड़ेगा. एक एक टास्क को कंप्लीट करते जाइए, स्टेप्स बढ़ाते जाइए, और फाइनली यू कैन एस्टैब्लिश योर बिजनेस. सो इट इज नॉट अ बस एक इंटरप्राइज है, ये एक बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप. नो, इट इज अ होल प्रोसेस. सेटिंग कैसे करे बिजनेस का, सारे के सारे स्टेप्स इंक्लूडेड हैं इसमें, इसीलिए दिस इज अ होल, ये क्या है, पूरा प्रोसेस है. एंड हु डिस्क्राइब दैट इट इज अ प्रोसेस? शम्फिटर डिस्क्राइब दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस. क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? क्लियर है? Now, next point. Yes, ma'am. Next one is promotion of new establishment. Promotion of new establishment. Promotion of new establishment. Promotion of new establishment. Okay, so let me tell you one thing, that जब एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, नया बिजनेस को एस्टैब्लिश करना. प्रमोशन का मतलब क्या होता है, नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मार्केट में अवेयर कराना, एडवर्टीजमेंट करना, कम्युनिकेट करना कंज्यूमर से. दिस इज नोन एज प्रमोशन. सो प्रमोशन ऑफ न्यू एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि बाय एंटरप्रेन्योरशिप इट डिनोट्स द प्रमोशन ऑफ न्यू एस्टैब्लिशमेंट by using all necessary resources like coordinating material resources, human resources. New establishment is promoted. So promotion, new establishment is utmost essential. So when we are establishing the business, we have to promote that business as well. So promotion is required. Why? Because people need to know about your business. जैसे हम नॉर्मल कंपनी और ब्रांड्स जो भी हैं वो करती हैं, प्रमोशन करती हैं, वैसे ही जब आप कोई भी नया बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोमोटेड बाय द एंटरप्रेन्योर्स. एंड हाउ वी कैन डू इट? वी कैन डू इट बाय द ह्यूमन एफर्ट. कोऑर्डिनेट करें. कई बार हमारे पास स्टार्टिंग में इतना फंड नहीं होता है कि हम एक्सट्रीम लेवल पे प्रमोशन कर पाए, तो somehow we are also using the various traditional technique जैसे पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाना. we are using the internet sources, we are using the Facebook, और आजकल अगर सबसे अच्छा तरीका है तो that is a social media to advertise. So they can also do the promotion of the new establishment. ठीक है. So first one is the nature of entrepreneurship में, that it can be started by the single effort or joint effort. Second point is that it is not only a business but it is a process which is described by Schumpeter. ठीक है. Third point, that promotion is required for the new establishment. नया बिजनेस जब आप सेट करते हो तो आप अगर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे तो वो कैसे अवेयर होंगे, है ना. सो प्रमोशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट अमॉन्ग द कंज्यूमर्स इन अ सोसाइटी, राइट. एंड ये चीज जो है एक नए बिजनेस में बहुत जरूरी होता है, लेकिन वही बिजनेस अगर फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइजी के थ्रू है, ठीक है, आपने फ्रेंचाइज लिया और आपने स्टार्ट किया, तो somehow you don't need to dependent on the promotion a lot because that company is already established in the market, है ना. लेकिन जब आप बिल्कुल नया बिजनेस शुरू कर रहे हो जिसके बारे में किसी को खबर ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, जानकारी भी नहीं है, और कई बार आपने इनोवेशन को बहुत ज्यादा यूज किया है और जो प्रोडक्ट आप लेकर आए हो उसके बारे में पहले से किसी को आइडिया भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर तक उस अवेयरनेस को पहुंचाना, उनको जागरूक करना, इस नॉलेज को पहुंचाना
उनसे कम्युनिकेट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्रमोशन ऑफ न्यू एस्टैब्लिशमेंट इज अ थर्ड नेचर, कि हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे वी हैव टू प्रमोट दैट एज वेल. Creativity and innovation. So I guess I don't need to elaborate this point. Obviously, according to the view of Schumpeter, everyone is talking about the Schumpeter. Elaborate it, okay? Now the next point is creativity and innovation. Creativity and innovation. So अगर हम Schumpeter की बात करें तो Schumpeter जो है उन्होंने बोला कि doing something general it does not help you to recognize in the market. अगर आप कोई भी चीज जनरल कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बाकी लोग जो चीजें कर रहे हैं, if you will do the same thing, that is not going to helpful for you to recognition. So creativity and innovation पे थे हम. So generally we can say that starting, मतलब Schumpeter said that if you will starting the business with the general theme, so no one is going to recognize you. Maybe you are the part of the same rush, यानी जो मार्केट में भीड़ में शामिल होने वाले लोग, और वैसे आपका रिकॉग्निशन होगा. बट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू वांट टू मतलब आप चाहते हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, सो डू समथिंग डिफरेंट, राइट. बट वो डिफरेंट का मतलब पॉजिटिव सेंस में है, ऐसा भी डिफरेंट नहीं करना है कि दैट विल बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है. सो जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, यूज योर क्रिएटिविटी. और इफ यू आर बेसिकली डूइंग द नॉर्मल बिजनेस, लाइक जैसे कि लोग कपड़े का शॉप खोल रहे हैं, तो नॉर्मल इफ यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस, जस्ट एड ऑन सम मोर फैसिलिटीज इन दैट, जस्ट यूज योर क्रिएटिविटी, राइट. So this is how, like in the case of the Domino's, just take it as an example, कि Domino's जो है, they are basically famous for selling pizza, right? They are famous for what? Selling pizza. They have multiple product, no doubt. They have lava, choco lavas, or multiple parcel, jingy parcel. They have multiple food, but they are more famous for the pizza. And for every party, the people are basically giving order for that. And I guess आप लोग भी order करते होंगे normally, है ना? लेकिन how the other shopkeepers are also doing the same thing. Like they have there are multiple pizza stores. They are also selling the product. But what make Domino's different from other, that they are giving you the promise that within 30 minutes we are going to deliver the pizza. So yes, in short we can say that just try to use your creativity and do something different from the others. Okay? So creativity and innovation is the major or important part for become an entrepreneur, and it is important for successful entrepreneurship. ठीक है. So use your creativity, but always try to आपको क्या मतलब never make yourself, never think that you are a failure. अगर आपका कोई business fail हो जाता है because of you, even you used your innovation and all, so just try to learn from those failure. ठीक है. So this is और एक और भी चीज कि जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं, जस्ट ट्राई टू गेट आउट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, ट्राई टू यूज द टेक्नोलॉजिकल, नया जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, नई जो चीजें चल रही हैं, जस्ट ट्राई टू अडैप्ट इट. Adapt yourself according to the environment and according to the trend. Use your innovation, creativity for start something different. Provide something unique to the consumers. Or either you can do add-on, whatever you are providing, that is a general thing. So just try to add on things in that, right? Clear ho gaya sabko, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one Yes, ma'am. is industry-oriented effort. Industry-oriented effort. Industry-oriented efforts. These are the nature of entrepreneurship. So what is the meaning of industries? Industry क्या होता है? Combination of company. Very good. It is a combination of a company. It is a combination of manufacturing units and all. So that is industry. So Adam Smith, who is Adam Smith? He's a father of economics. So Adam Smith क्या बोलते हैं? ठीक है? What Adam Smith is saying, Adam Smith viewed that the enterprises as an individual undertakes the formation of an organization for commercial purpose. Thus be the entrepreneurs the role of industrialists. मतलब देखो, in short ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आप एक यहाँ पर सिंगल एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो एडम स्मिथ कहते हैं कि जो एक इंटरप्राइजर है वो एक इंडिविजुअल है
जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम कर रहा है। सो इसीलिए ये, और वो भी किस पर्पस से, कॉमर्शियल पर्पस से। जहां भी वर्ड कॉमर्शियल आ गया मतलब समझ जाइएगा प्रॉफिट, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस से। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर का जो रोल है, दैट इज अ रोल ऑफ अ इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। टाटा क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। दे हैव ग्रुप्स, टाटा Yes, ग्रुप के वो मालिक हैं और उनके अंडर में मल्टीपल कंपनीज दे हैव, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे हैव मल्टीपल, बोल सकते हैं कि जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अंडर में बहुत सारे बिजनेसेस को शुरू करता है, कंपनी स्टैब्लिश करता है, वही सेम रोल एक एंटरप्रेन्योर का है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन में का काम किसका है, एक एंटरप्रेन्योर का। सो एडम स्मिथ एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं देखते हैं, ही इज लुकिंग हिम लाइक अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड एफर्ट, ठीक है। बट दिस इज नॉट आवर व्यू, बट दिस इज अ व्यू ऑफ एडम स्मिथ। उनका कहना है कि जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है, एक नए ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योर भी एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है, ठीक है। सो दे आर लेस एंटरप्रेन्योर बट दे आर मोर इंडस्ट्रियलिस्ट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया यहाँ तक? एक्सक्यूज मी मैम, yes, ma'am. मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में, हर एक कंपनी में इंप्रूवमेंट का, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का, ये पूरा चलता है सिस्टम। दे हैव रिसर्च डेवलपमेंट टीम, दे हैव एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, ट्रू। सो द एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, दे आर बेसिकली वर्किंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर वर्क इज द सेम लाइक द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उनका काम बिल्कुल एंटरप्रेन्योर की तरह होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करा उन्होंने, अपनी इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को, सब स्किल को यूज किया अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे वो किसी कंपनी के अंडर में दे आर वर्किंग लाइक एन क्रिएटिव पर्सन, मतलब वो एक क्रिएटिव के लिए काम करेंगे, नया आपको बोल सकते हैं कि मैनेजर्स को और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को नया आइडियाज बताएंगे, किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम नई चीजों को ला सकते हैं। तो दे आर बेसिकली क्रिएटिव पीपल बट दे आर वर्किंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जिनका अपना बिजनेस होता है, सारा स्किल दे विल यूज फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे विल यूज इट, राइट, दे विल यूज देयर क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, अपने लिए दे आर नॉट वर्किंग। यस, द सेकेंड डिफरेंस, एंटरप्रेन्योर का कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके बिजनेस में इस महीने कितना प्रॉफिट होगा, अगले महीने कितना प्रॉफिट होगा, तो उनका कोई सैलरी फिक्स नहीं होगा। बट एंटरप्रेन्योर जो होगा, उसकी सैलरी जो होगी वो फिक्स होगी, क्योंकि he is an employee who is working under the organization. So this is the major difference. The mind that is used, that is totally similar. They both will use their creative mind, but the entrepreneur will do it for their own business, and entrepreneur will be do for the other organization in which he or she is working like an employee. Clear हो गई बात, समझ में आया? जैसे R&D की जो टीम होती है, उसमें पूरे कौन लोग होते हैं? They are innovators. They will research, they will tell you the solution, they will tell you about the problems. So they are basically entrepreneurs. लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम नहीं करते, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। क्लियर हो गया? मान लीजिए ड्राइवर है, दैट पर्सन इज आल्सो एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वन एंटरप्रेन्योर, he or she is also an employee of the organization, but the work is different. Like the other employee is doing the marketing work, someone is doing finance work, but the work of entrepreneur is totally dependent upon their research, designing, solution, creativity, innovation. So their main work is for that. So in short, they both are employees, right? But the work area is totally different of the normal employees and the entrepreneur. Clear हो गया? इसमें ये भी बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। एम्प्लॉय रहता हुआ
मैनेजमेंट रोल प्ले वो नॉर्मल अपने काम करेगा। देखो ये अकॉर्डिंग टू एरियाज होता है, जैसे आपको जो जो एरिया मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर हर एक एरिया में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दे आर इन द मार्केटिंग टीम एज वेल, बट द वर्क ऑफ देम इज टू इनोवेट समथिंग, नया कुछ बनाना, जैसे मैसेज डिजाइन करना, तो नया कुछ मैसेज डिजाइन करना, तो देयर वर्क इज टोटली रिलेटेड विद द क्रिएटिविटी। जो भी काम करेंगे वो क्रिएटिव तरीके से नया कुछ करेंगे, जैसे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, लेकिन फॉर बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द एम्प्लॉइज डूइंग द वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, लाइक काम करना, टाइमिंग पे जाना, काम करना, लाइक दिस, ठीक है। बोथ आर एम्प्लॉइज। ये बेसिस लिखेगा इस तरीके से, देखिए मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा इस पे। सो हियर द बेसिस, हियर द एंटरप्रेन्योर एंड हियर द एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग अपना इंडस्ट्री ओरिएंटेड एफर्ट समझ में आ गया, लाइक फॉर्मिंग द, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं वैसे ही सेम हम एंटरप्रेन्योर्स जो है बिजनेस को भी स्टैब्लिश करते हैं। परफॉर्मिंग सोशल फंक्शन, द नेक्स्ट नेचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज परफॉर्मिंग सोशल फंक्शन, परफॉर्मिंग सोशल फंक्शन. So we all knows that the entrepreneurs are those who are basically ready to take the risk as well, right? So they are promoting the new establishment in the market, and the entrepreneurship provide the creation. They are creating the employment for the others. They will become the inspiration for others to start the business. Okay? So in short, we can say that they are not only doing the commercial thing, they are not only basically establish themselves as a बोल सकते हैं कि commercial purpose, profit motive, they are not establishing themselves, but they are also contributing to the society. How? That they are providing the employment to the others, दूसरे लोगों को job देते हैं, दूसरे लोगों को inspiration देते हैं। Society में हम किस तरीके से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज कौन देता है? एंटरप्रेन्योर देता है, ठीक है। सो दे आर नॉट ओनली स्टक विथ अ प्रॉफिट मोटिव, बट दे आर बेसिकली आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इंप्लाइज द अंडरटेक द रिस्क ऑफ वेंचर रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, वो रिस्क लेता है, और उसके अलावा वो प्रमोट करता है अपने एस्टैब्लिशमेंट को, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, एक राष्ट्र के डेवलपमेंट में, राष्ट्र के विकास में वो सहयोग करता है, ठीक है। अब देखो आज के टाइम पे आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ठीक है, जस्ट टेक इट। नॉर्मली आप इसको सुनिएगा कि कोविड आया 2020 में, we all understand that what was the situation. बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो गई, हमेशा के लिए बंद हो गई। बिग बाजार बहुत वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच गया, इवन वन ऑफ द लीडिंग हाइपर मार्केट था वो, और उसके बाद वो एकदम से डाउन हो गया। दैट वाज द पार्ट ऑफ द फ्यूचर ग्रुप अर्लियर, बट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द Amazon, right? So do we understand the whole situation, that what is the impact of COVID that is over the various companies? बहुत worse effect था। छोटे मोटे जो vendors थे उनका भी बुरा situation था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, they cannot sell their product, so situation was not okay। employment, बहुत लोग की job चली गई। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपका अपना बिजनेस होता है या किसी भी तरीके का, अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत रिड्यूस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोगों को इंस्पायर करता है कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली फॉर द वन पर्सन, बट इट इज फॉर द मल्टीपल पीपल। इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, आई एम गोइंग टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द 50,000, 80,000, 90,000, maybe lakh after some years, right? So it is not for only for me, but it is for the whole society. In short, it is helpful for the national development as well, right? Clear हो गई बात, समझ में आया? So किस तरीके से social function है ये समझ में आया, performing social function. Now the next one is accelerating the economic development. So economic development, that is for the GDP, and gross domestic जो product होता है, that is basically calculated by the manufacturing, consumption,
प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग्स, ये सबसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो आपका जो बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली अ बिजनेस बट इट इज अ रिसोर्स। ये एक तरीके का रिसोर्स है हमारे लिए, बिकॉज दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को तो कंजप्शन लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कंजप्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, कंजप्शन आपका इंक्रीज होगा। कंजप्शन इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा मैम। बिल्कुल। So the same thing is with that it is helpful for accelerating the economic development because somehow it is contributing to the production, consumption, employment, savings, multiple factors. आगे बस समझ में। सो इसीलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। नेक्स्ट वन इज डायनेमिज्म। डायनेमिज्म, व्हाट इज डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? मैम जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये करता है, इनोवेशन करता है। इनोवेशन करता है या फिर बदलाव जो आता रहता है, ठीक है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है, इट इज नॉट स्टेबल बिकॉज द समय के अनुसार में बदलाव आते ही रहता है। बिल्कुल। तो डायनेमिक अप्रोच हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक अप्रोच का मतलब ये है कि बिजनेस हमेशा अपने आप को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, राइट। सो डायनामिज्म का मतलब ये है कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वी आर बेसिकली इन्फ्लुएंस, मतलब हमारे ऊपर प्रभाव चेंजिंग एनवायरनमेंट का पड़ता है और उसी हिसाब से जो एंटरप्रेन्योरशिप है दैट इज आल्सो टेकिंग दिस ऑप्शन। डायनामिज्म का दे आर आल्सो टेकिंग द ऑप्शन, वो भी अपने आप को बदलते रहते हैं, लेकिन एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस वो लेकर आते रहते हैं। In a view of having the influence for the dynamic and the changing environment, the dynamism is observed in case of entrepreneurship। मतलब एंटरप्रेन्योर्स पूरे एनवायरनमेंट को पहले पूरा स्कैन कर लेता है और उसके बाद फिर वो बिजनेस शुरू करता है, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता रहता है दे आर ऑल्सो बेसिकली introducing the new product, new services, they are doing new innovations for setup with the new environment। यानी नया environment जो भी है उसके हिसाब से सेटअप होने के लिए नई नई फैसिलिटीज को, नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आता है। जैसे पहले क्या था मैं बताती हूँ, अर्लियर बिग बाजार वाज नेवर डूइंग होम डिलीवरी, कभी भी होम डिलीवरी वो नहीं करता था। मतलब मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप बट आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ द बिजनेस। लाइक दे वर नेवर डूइंग the home delivery, but when the COVID arrived in India and the e-commerce site started selling their grocery product and they are providing it to their home, matlab ghar tak, doorstep tak they are providing, then Big Bazaar understand that we also need to provide the home delivery system। then what they did, they started doing the home delivery करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज नोटिस कीजिए कि जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आया, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी चीजें हो, बिजनेस अपने आप को बदलता है, या तो बदलता है या तो फिर नई चीजों को इंट्रोड्यूस करता है ना। तो सेम थिंग इज विद द एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। सो दे ऑलवेज बोल सकते हैं, दे ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक एनवायरमेंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन इज अ पाइनियर, रिकॉग्नाइज्ड एज द पाइनियर। अच्छा, आप लोग में से कितने बच्चे हैं जो पहले पाइनियर को पनीर पढ़ते थे? हाउ मेनी ऑफ यू हु वर बेसिकली रीडिंग पाइनियर एज अ पनीर? हाउ मेनी ऑफ यू? नहीं, यू कैन रेज योर हैंड, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनी। हाँ, सो मेनी ऑफ यू। पाइनियर की अगर मैं बात करूं तो पाइनियर वो होते हैं जो कुछ नया कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को। जब कुछ नया बिल्कुल से लेकर आते हैं ना, तो दे आर नोन एज द पाइनियर बिकॉज दे आर द फर्स्ट हु टेक द स्टेप टुवर्ड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और दे प्रोवाइडेड सच प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो दे आर बेसिकली नोन एज द पाइनियर, उनको पाइनियर कहते हैं। सो रिकॉग्नाइज्ड एज द पाइनियर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द अरेंजमेंट ऑफ सो मेनी थिंग्स। देयर फंक्शन इज लाइक दे आर द ओनरशिप they are providing,
हैंडलिंग, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे आर ऑल्सो वर्क लाइक द ओनर, वही तो ओनर होते हैं, ठीक है. दे आर द promoter of their company, they are the risk takers, they are producing the product, they are doing multiple functions. बोल सकते हैं अकेले उसको मैनेज करना मल्टीपल फंक्शंस को. सो दैट इज वी कैन से कि दिस इज ओनली डन बाय द एंटरप्रेन्योर्स. दे आर द पीपल हु वांट टू बी इन द एवरी फील्ड. मतलब मैं आपको बताती हूँ कि कोई इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग. दे आर हैंडलिंग मार्केटिंग, दे आर हैंडलिंग फाइनेंस, दे आर हैंडलिंग द बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, हायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग. सो इन शॉर्ट वी कैन से द पर्सन हु इज डूइंग द मल्टीपल टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एंटरप्रेन्योर इन शॉर्ट. बिकॉज इन स्टार्टिंग वेरी लेस पीपल हु बिलीव ऑन द स्टार्टअप दे कैन ज्वाइन द कंपनी. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि दे नोज कि दे विल नेवर गेट द सैलरी ऑन टाइम, बिकॉज टोटली जो वो चीजें होती हैं रिस्क बहुत ज्यादा होता है. तो कई बार वो एक पर्सन होता है जो हर एक रोल को निभाता है, एंटरप्रेन्योर. सो दैट इज द रीजन दे आर द पायनियर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दे आर डूइंग मल्टीपल फंक्शंस सिंगल हैंड, राइट. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दे आर नोन एज द पायनियर. ठीक है, इसलिए वो पायनियर हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है. तो आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो, व्हाट इज बेटर फॉर देम. यू कैन एंटरप्रेन्योरशिप इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, Yes, so let's move toward the today's success story. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm sharing the screen. So we already did so many topics. In today's, we are going to understand about Ola to we completed, Nykaa we completed. Yeah. In today's class, we are going to understand about the Flipkart, how this story began and how it started and who is responsible for starting this e-commerce platform, the successful platform. Okay, so Sachin meet these Bansal, two sir. persons, meet these two persons, Sachin Bansal and Binny Bansal. These two persons started Flipkart. The Flipkart story was started in 2007. These two persons are the IIT graduate and they graduated from IIT Delhi. IIT Delhi से इन दोनों ने graduation complete किया और उसके बाद they started doing job. Earlier, the Sachin Bansal joined Amazon in 2006. मतलब 2006 में they were basically both were working in Amazon. दोनों ने Amazon पे काम किया, ठीक है. So Yes, Amazon was the oldest e-commerce platform, मतलब एक बहुत पुराना platform है. So they learned so many things. They learned so many things from बेसिकली Amazon जो है उनसे इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को लर्न किया, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था उस टाइम पर, ठीक है. उसके बाद अभी तो वी कैन से देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइक मिंत्रा इज देयर, फ्लिपकार्ट इज देयर, स्नैपडील इज देयर एंड अर्बन क्लैप इज देयर. अर्बन क्लैप इज बेसिकली प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज, राइट. Yes, So ma'am. there are multiple e-commerce site that is not only for the product but for various services. Like the DocsApp is there. DocsApp सुना है आप लोगों ने? DocsApp सुना है? Yes, ma'am. DocsApp is a online consultancy for the medical treatment. यानी अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं DocsApp के Treatment भी करा सकते हैं मैम. हाँ बिल्कुल. They will provide you the medicines. If you have any skin related problem, you can even send them the picture. They Video have call पे option. मैम. हाँ बिल्कुल. They have options for the video conferencing and the audio conferencing. So I am just telling you that nowadays that e-commerce become very wide. But when they started Flipkart, उस समय बहुत ही limited option था. तो Amazon में they both worked, ठीक है. अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो जो फाउंडर्स हैं फ्लिपकार्ट के, बिनी बंसल और सचिन बंसल, व्हाट दे सेड अबाउट इट, वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट द नंबर्स देन, बट वी न्यू समथिंग बिग कैन बी बिल्ट आउट ऑफ ई-कॉमर्स. मतलब उस समय हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे थे कि हम कितना कमा पाएंगे, कितना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नंबर्स, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द क्वांटिटी, बट व्हाट वी नो कि दैट ई-कॉमर्स एक ऐसा
मतलब ऐसा हमारे लिए ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम कुछ बेहतर और बड़ा कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंकिंग ऑफ दीज टू पर्सन, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। सो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आपका फ्लिपकार्ट जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, डोमिनेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि अमेजोन के बाद कहीं ना कहीं अगर हम रैंकिंग की बात करें तो वी आर गिविंग रैंक 2 टू फ्लिपकार्ट। एग्जैक्टली, है ना? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हो जो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट को परचेज करते हो? रेज योर हैंड। मैं हूँ। हाँ, नहीं, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम सेइंग रेज योर हैंड। एंड आई गेस एवरीवन, I am also purchasing products from Flipkart, so I am also raising my hand. So it was started in 2007, which I already told you that it was started in 2007. 2007 में इसको स्टार्ट किया गया एंड इसका जो हेडक्वार्टर था बेंगलुरु था, बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया एंड इट वाज फाउंडेड बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, द ऑनलाइन वेंचर। बट यू नो व्हेन दे स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब इन्होंने ये बिजनेस को शुरू किया तो दे नेवर डिसाइडेड टू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट। अभी हम देखेंगे तो हर एक आइटम इनके जैसे अमेजोन में सेल होता है वैसे ही सेम दे आर सेलिंग, बट अर्लियर दे स्टार्टेड विद द बुक सेलिंग ऑनलाइन। मतलब बुक को ये सेल करते थे, बुक्स वगैरह जो होते हैं, किताबें वगैरह जो आज भी हम लेते हैं, नॉवेल्स खरीदते हैं, कोर्स की किताबें खरीदते हैं। सो बेसिकली दे स्टार्टेड बाय सेलिंग द प्रोडक्ट बुक बेसिकली ऑनलाइन, मतलब बुक स्टोर एक तरीके से था फ्लिपकार्ट पहले, ठीक है। बट जैसे जैसे फर्म का नाम इंक्रीज होता गया, जैसे जैसे लोग फ्लिपकार्ट को रिकॉग्नाइज करने लगे, वैसे वैसे ही दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर एक्टिविटीज एंड नाउ दे हैव ओवर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे हैव मल्टीपल कैटेगरीज, मोर देन 80 कैटेगरीज दे हैव, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट एंड इवन द प्लेटफॉर्म इज आल्सो स्टार्टेड सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स लाइक दे हैव म्यूजिक, मोबाइल फोन्स, मूवीज and nowadays they have even so many options। मतलब ये अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हैं। They are also providing the Flipkart coin भी मिलता है ना सबको? Flipkart coin मिलता है कि नहीं? yes, so they are added, हाँ, they are added in the wallet and in the next purchase the amount is going to deduct from your final amount, like 500 का next time purchase करते हैं तो 10 रुपए का coin है तो 10 रुपए डिडक्ट हो जाता है। So there are multiple options right now। तो चलिए, सो प्लेटफॉर्म जो है बहुत सारी चीजों को सेल करता है। दे हैव 80 मिलियन प्लस प्रोडक्ट, आई सेड दैट मिलियन ऑफ प्रोडक्ट है। दे हैव ओवर मोर देन 80 कैटेगरीज व्हिच आई टोल्ड यू, एसेसरीज, स्पोर्ट्स आइटम, फिटनेस आइटम, बेबी केयर, क्लोथ्स, गेम्स, टॉयज, ज्वेलरी, सो मेनी प्रोडक्ट, राइट। एंड इन द मंथ ऑफ 2020 एज पर द वॉलमार्ट की, अगर हम वॉलमार्ट का स्टैटिस्टिकल डेटा को देखें, वॉलमार्ट पता है क्या है? एवरीवन, you all knows about what is Walmart? Yes ma'am, e-commerce company है। Yes, no, it's not an e-commerce company. Let me tell you, the Walmart is the story which has started the retail in the whole world. So in the 1962 Walmart एक पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है। 1962 में it was started by Sam Walton, ठीक है। और हमारे इंडिया में भी 1991 के बाद जब एलपीजी आया तो वहां से बेसिकली हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर पहुंचना शुरू हो गया रिटेल का। और एक चीज और बता दो, बिग बाजार ने जो आइडिया डिराइव किया था ना, दैट वाज डिराइव फ्रॉम द वॉलमार्ट। इंडिया में भी वॉलमार्ट आया बट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बिकॉज वॉलमार्ट को बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, उसके बाद उसको पार्किंग लॉट भी चाहिए था। उतना बड़ा एरिया इंडिया में मिलना बहुत इम्पॉसिबल था और यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था, सो इतना ज्यादा दिन टिका नहीं, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट का बहुत सारा जो उन लोगों ने कुछ स्टोर्स वगैरह ओपन किया था उसको बाद में एक्वायर कर लिया था। चलिए उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन चलो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इन मंथ ऑफ नवंबर 2020 में वॉलमार्ट के हिसाब से फ्लिपकार्ट के पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ मंथली एक्टिव कस्टमर्स, मतलब उनके बहुत सारे कस्टमर्स जो एक्टिव है, एक्टिव कस्टमर्स हु आर डूइंग द ट्रांजैक्शन थ्रू द साइट, यानी जो हमेशा प्रोडक्ट को परचेज करते रहते हैं, दे आर द एक्टिव कस्टमर्स, ठीक है। And even they have some office areas and they have multiple contracts with the firm because they are e-commerce platform। तो प्लेटफॉर्म है तो उनके पास बहुत सारे फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कॉन्ट्रैक्ट में है उनके साथ, जो कि मुंबई में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, लखनऊ में, अहमदाबाद में, पटना में, मल्टीपल सिटीज में दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे व्हाट दे आर डूइंग, बेसिकली दे आर रजिस्टरिंग द फर्म एंड थ्रू विच दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, राइट।
फ्लिपकार्ट फाउंडर्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी कहानी पढ़ें तो जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फ्लिपकार्ट जो है वो फाउंडेड हुआ सचिन बंसल एंड बिनी बंसल से, बोथ बीइंग 2005 ग्रेजुएट, मतलब 2005 में दोनों ने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और दे बेसिकली एक्सपोज टू द रिटेल सेक्टर व्हाइल वर्किंग एट Amazon। मतलब Amazon में जब वो काम कर रहे थे उन्होंने रिटेल सेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, कंज्यूमर को समझा, कंज्यूमर का डिमांड क्या है, क्या उनका ऑनलाइन साइट चलेगा कि नहीं, एंड ये सारी चीजों को समझते हुए ये दोनों उसी जगह पे मिले थे। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल दे बोथ मेट एट ऑफिस ऑफ Amazon। दोनों Amazon के ऑफिस में मिले और वर्क प्लेस में उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, रिटेल सेक्टर को समझा, क्योंकि Amazon एक तरीके से क्या है, ऑनलाइन रिटेल सेक्टर है, ऑनलाइन ई कॉमर्स है, ठीक है। सो दे बोथ एक्सप्लोर्ड द थिंग एंड आफ्टर दैट दे वांट टू चेंज द ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि ई कॉमर्स का उतना ज्यादा ट्रेंड इंडिया में उस समय पे नहीं था। तो दे वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग इंटरेस्टिंग एंड दे स्टार्टेड विद द फ्लिपकार्ट। सो डोंट बी आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके वर्किंग प्लेस का और एटमॉस्फेयर का इफेक्ट था जिसने उनको इंस्पायर किया टू स्टार्ट द बिजनेस? यस मैम, यस मैम, एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल। जॉब पीरियड में ही मैम वो सब कुछ सीख लिया था, देख लिया था मैम। बिल्कुल दे एक्सपीरियंस द थिंग, उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। सो एक्सपीरियंस Yes. इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज वी एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड गेन किया था। बिल्कुल रियलिस्टिक थिंग्स को हम कैसे implement कर सकते हैं, that is only done by the experience and they did that, right? So they both met at the working place and with the mutual interest, मतलब दोनों ने interest जगाया कि yes we can start the business, and इसीलिए वो क्या लेकर आए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, हमारे फ्लिपकार्ट को इंडिया में, ठीक है। and they both quit their job from Amazon in 2007। 2007 में दोनों ने जॉब को क्विट कर दिया, ठीक है। सेटिंग ऑफ टू क्रिएट अ सिमिलर ई कॉमर्स कंपनी, मतलब एक सिमिलर एक ई कॉमर्स कंपनी जो Amazon था उसकी तरह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और लेकिन इनके कंज्यूमर्स आउट ऑफ इंडिया के नहीं थे, दे वांट टू फोकस ऑन द इंडियन यूजर, कंज्यूमर या इंडियन यूजर्स, यानी जो इंडिया में प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो उनके इंडियन कंज्यूमर्स हैं, दे फोकस ऑन दूस, ठीक है। तो इनको कंज्यूमर कौन चाहिए था, इंडिया का, ठीक है। The two wish to offer Indians an online store and was created for India and that is known as Flipkart nowadays, ठीक है। So Flipkart बिजनेस मॉडल की बात करें, बहुत सारे मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक ई कॉमर्स कंपनी है और इन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर रखा है। दे आर डूइंग मल्टीपल प्रमोशन वर्क। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हो जो फेसबुक पे देखते हो कि बार बार आपको एक पॉपअप बॉक्स खुल जाता है और उसमें ऑप्शन आता है? यस मैम, ऐड भी आने लगता है, यूट्यूब पे भी आता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। एंड व्हेन वी आर यूजिंग द यूट्यूब, व्हेन वी आर वाचिंग मूवीज, अचानक से वी आर ऐड आ जाता है। सो इन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है, जैसे सोशल मीडिया, जैसे ट्विटर को अडॉप्ट किया इन्होंने, यूट्यूब को अडॉप्ट किया, इंस्टाग्राम को जो इनके आइटम्स को प्रमोट करता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे आर यूजिंग द ऑनलाइन मीडिया फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है। अभी एक सर्वे हुआ था, अभी मैं तुम लोगों को एक बताती हूँ, एक सर्वे हुआ था जहां पर ये फाइंड आउट हुआ है, पता है क्या मिला है, कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 70% से ज्यादा जो वर्किंग पीपल हैं, जो लोग काम करते हैं, वो अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे यूटिलाइज करते हैं। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये आपका जो सोशल मीडिया है एक बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म बन गया है कंपनीज के लिए, तभी वो एडवर्टाइज करते हैं। यस मैम, यही सबसे अच्छा तरीका मैम, जो टेम्पलेट वगैरह बैठाते हैं वो तो the people are not watching that. That is a very traditional way. Now the people are moving toward the trendy things, right? So the pamphlet somehow it is working also, but not as such effective like the social media. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम लोग और कहाँ थे? हाँ, तो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड कि वो बहुत सारे उन्होंने प्लेटफॉर्म मीडिया जिनका बिजनेस मॉडल है, दे स्टार्टेड प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। और तुम लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा, जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आता है उससे पहले देखा कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। यस मैम, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो इतना ज्यादा लो होता है कि प्री बुकिंग शुरू हो जाता है। बिग बिलियन डे आने से पहले दे स्टार्टेड प्री बुकिंग शुरू हो जाता है। आउट ऑफ स्टॉक तुरंत है मैम। बिल्कुल।
So we understand that being a business to consumer model, मतलब इनका जो main theme है, they always focused on the consumers and they adopted multiple platform and they have multiple sellers as well. मतलब इनके पास बहुत सारे sellers हैं. With the customers getting increasingly reliant on the online shopping, and nowadays तो देखिए सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं shopping करते हैं तो that is a online site. Because we can access it at any time, कहीं कभी भी access कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, क्लासरूम में बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं एवरीवेयर एवरी टाइम 24/7. तो एक तरीके से ये कन्वीनियंस स्टोर आपके लिए बन गया. ठीक है, तो 24/7 you are able to access this site. तो nowadays the customers are totally reliant, we बोल सकते rely on the online shopping. ठीक है, so kahin na kahin this trend also help Flipkart to become successful. ठीक है, उसके बाद they are basically providing multiple facilities. They have branded products, they have discounts over the product, they have cash on delivery facility. Cash on delivery, जब घर पे सामान आएगा तो पैसे पेमेंट करने की जरूरत है. They have UPI system, they have card credit system, right? They have EMI options as well. So they are providing the multiple options for payment. ठीक है, refund policy is also very fine of the Flipkart. Like if you will return the product, you will get after 7 days you will get the refund amount. Refund. है ना? Yes. So this is also one of the factor that the people start trusting on the Flipkart. ठीक है. And nowadays they also did one thing, that because we all knows that it is a platform only, so there are multiple sellers, and somehow this is also one of the drawbacks for the online कि कई बार seller आपको spurious, नकली, fake, damaged product भी provide कर देते हैं. So ऐसे situation में भी आपका Flipkart product को वापस कर लेता है. ठीक है, तो इनका refund policy is very fine, the people are very much satisfied, as well as कस्टमर को कंफ्यूजन ना हो कि प्रोडक्ट जो मैं परचेज कर रहा हूं वो बेटर बेस्ट है या नहीं. सो नाउ दे आल्सो प्रोवाइडिंग वन स्टेटमेंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड दैट इज फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट. तो ब्लू कलर से आपने देखा होगा कि एश्योर्ड लिखा होता है प्रोडक्ट में, दैट इट इज एश्योर्ड प्रोडक्ट. एश्योर्ड है मतलब कि फ्लिपकार्ट की तरफ से इसको बेस्ट का मिल गया है सर्टिफिकेट, यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट इजिली. सो दे आल्सो मेक सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, दैट फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट बैज इज गिवन टू द सो मेनी प्रोडक्ट्स. तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो. लाइक माई ब्रदर, ही इज ऑल्सो सेइंग दीदी मत खरीदो ये प्रोडक्ट, दिस इज नॉट फ्लिपकार्ट एश्योर्ड. ठीक है, दिस इज अ सर्टिफिकेशन ऑफ वी कैन से ट्रस्ट. ठीक है, यस मैम कभी कभी बेस्ट सेलिंग भी लिखा जाता है मैम. बिल्कुल, बेस्ट सेलिंग मतलब जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा होगा ना, ट्रेंड में होता है, तो बेस्ट सेलर्स होता है कि सबसे ज्यादा इन कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है. सो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग दैट, and they also implies the double check facilities they have. They are providing safety to the product as well as to the consumers. So we all understand that this is how the Flipkart is started. The work experience is something which motivated the Sachin Bansal and Binny Bansal to start the same type of business, e-commerce. Starting में books के साथ शुरू किया और आज one of the leading e-commerce platform है. ठीक है, and they have multiple centers in 2009. Earlier they started with Bangalore, then after that they have multiple centers they have in Mumbai, Delhi. In 2014 they purchased Myntra as well. And you know what, Myntra in earliest part मतलब बोल सकते हैं starting में they were selling only clothes. ठीक है, but nowadays they are also selling the accessories. They don't have a deep product assortment, but they have multiple products. So they also Flipkart also acquired Myntra in 2014, and they purchased it for the $400 million. And later on in 2016, they purchased the fashion website Jabong with the $70 million. ठीक है, they also purchased PhonePe. मतलब सोचिए कितना ज्यादा कंपनीज को भी एक्वायर कर रहा है. And they also purchased the e-commerce corporation eBay. ठीक है, and this platform consolidated all of its Bangalore offices to develop a single big campus. बहुत बड़ा campus है इनका Flipkart में in Bangalore, and they also set up their office in Singapore. मतलब out of India भी they have one office.
ठीक है. In 2018, the Flipkart was acquired by Walmart. Yes, Walmart acquired Flipkart. I just said the opposite one. The thing was changed. The Flipkart was acquired by the Walmart with the 77% of share of the platform. यानी Walmart ने खरीद लिया आपके 77% शेयर किसका? Flipkart का, जो कि यूएस रिटेल जायंट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि Walmart जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल जायंट है. समझ रहे हो? सबसे पहले 1962 में उसकी कहानी शुरू हुई थी. कभी उसकी स्टोरी पढ़ाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है. चलिए, सो फ्रॉम द टाइम टू इट्स लॉन्च 2016 में सचिन बंसल ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द सीईओ एंड बिन्नी बंसल ही टुक द पोजीशन ऑफ सीईओ एंड नाउ द वी कैन से कि सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं और आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सचिन बंसल. Okay, so this is how the story of the Flipkart was started. And अगर अभी हम बात करें तो Flipkart also introduced the new sector in their products, and that is the grocery item. So they also started the selling the grocery items. उन्होंने शुरू कर दिया सेल करना प्रोडक्ट को, and that has happened in the time of the COVID. COVID के समय से उन्होंने स्टार्ट कर दिया. कोविड के टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना तो सबसे बेटर अगर इफेक्ट किसी पे पड़ा है तो वो ई कॉमर्स साइट पर है. फिजिकल स्टोर स्पेस से ज्यादा, फिजिकल स्टोर तो बहुत सारे शट डाउन हो गए, बहुत सारे एक्सट्रीम लॉस में चले गए, बट एक ई कॉमर्स ही ऐसा साइट था दैट वाज प्रॉफिटेबल इन द टाइम ऑफ कोविड एज वेल. यस मैम. मैम इसीलिए तो बोलते हैं मैम कि ये मतलब ऑफलाइन छोड़ करके ऑनलाइन की तरफ बढ़ो ताकि हमेशा प्रॉफिट हो. मतलब एग्जैक्टली. और फ्लिपकार्ट की फंडिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट का भी वैल्यूएशन है $24.9 बिलियन यूएसडी इन द ईयर ऑफ 2020. ठीक है. चलिए, so we understand that what is the situation and they have so many investor as well, just Axis Bank, ठीक है, Naspers, SoftBank, Vision Fund. So they are basically investors of Flipkart. So I guess we all understand that how the e-commerce site is profitable for whom? Profitable for everyone, as well as e-commerce site increasing the service sector. Like जैसे courier service बढ़ गया, transportation service बढ़ गया, warehousing service बढ़ गया. So they are not only giving service to the consumers, but they are basically increasing the service sector in India as well. ठीक है. So how it was started and what we are able to see the situation of Flipkart now. So we can understand that how we can become the successful entrepreneur like Sachin Bansal and Binny Bansal. So I guess the story is ended and some with the problem which he faced, Bhavish Agarwal, who faced that problem, and because of that problem, the irritation, frustration, the unsuccessful travel services and that business means that inspire him to do better. Yes, and in this situation the आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस था, जो एक पोटेंशियल मार्केट आपको दिख रहा था ई कॉमर्स में, दैट बेसिकली इंस्पायर बिनी बंसल एंड सचिन बंसल टू स्टार्ट द फ्लिपकार्ट, राइट? सो द सिचुएशंस आर डिफरेंट, बट बोथ लीड टू मेक, सबने मिलकर के क्या बनाया, एक बिजनेस को सेट किया. भावेश अग्रवाल दे स्टार्टेड ओला एंड सचिन बंसल दे स्टार्टेड फ्लिपकार्ट. So according to their own problems, experience, their learning, they started their business. So they are the inspirational bodies for us. We can get inspired and we are basically take them as an example that how we can become entrepreneurs, right?